और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टूल केस में अब दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। आइए सुनते हैं। The same document mentions tasks such as disruption of India's cultural heritage such as yoga and tea and targeting Indian embassies abroad in various capitals. The time-bound action points and program given in the toolkit, when viewed in the context of actual developments in Delhi, clearly showed that the action plan that was formulated in the toolkit was implemented on ground or executed in a copycat manner. Keeping in mind all these facts, a case was registered by FIR number 49 by 2021, and the investigation was taken up by CyPAD, Cyber Unit of Delhi Police. During the investigation, many screenshots of the toolkit document available on open source were investigated. As soon the investigation was able to fetch enough information, a search warrant was obtained from the Honorable Court on 9th February 21 against one Nikita Jacob, one of the editors of the toolkit Google document. A team headed by the IO of the case reached Mumbai and conducted searches at her house on 11th February 21. After due intimation to the Mumbai police, and 2 laptops and 1 iPhone was found, and during the search, several incriminating information was retrieved. Keeping in mind that the person whose premises is being searched is a woman, and as per the court order, the search was carried out in the daytime, and the investigating team wound up the day's search and requested Ms. Nikita to make herself available at her house on the next morning. She gave a written undertaking to remain present at her house. The initial examination of Nikita revealed that she and her associate Shantanu and Disha had created the toolkit Google document. The email account created by Shantanu is the owner of this document, and all others are its editor. A woman named Puneet, who is based in Canada, connected these people to the Pro Khalistani Poetic Justice Foundation, and through them created the toolkit Google document titled Global Farmer Strike and Global Day of Action 26th January. On 11th January, Nikita and Shantanu, I repeat, on 11th January, Nikita and Shantanu attended a Zoom meeting organized by Poetic Justice Foundation, in which the modalities of the Global Day of Action were worked out. Based on the course of action decided in the Zoom meeting, Nikita, Shantanu, Disha, and others collaborated towards the draft of the toolkit. Based on the information gathered from Nikita and her device, separate teams were sent to Maharashtra, Bid district, and Bengaluru. In Bid, Shantanu was not found at his house, and we are still searching for him. On the next morning, when the investigation team reached Nikita's residence, it was learned that she has absconded and still not joined the investigation. As such, for Nikita and Shantanu, we have taken NVWs from the Honorable Court. In Bengaluru, the team examined Disha and was able to extract highly incriminating information from her phone. This information made it clear that Disha, along with her colleagues Shantanu and Nikita, created and sent a toolkit document to others. Disha, who is associated with the environmental movement called Fridays for Future, sent the toolkit to Greta Thunberg on Telegram and also coaxed her to act on it. The main aim of the toolkit was to create misinformation and disaffection against the lawfully enacted government. The toolkit sought to artificially amplify the fake news through various tweets which they have created in the form of a tweet bank, and they also sought public to participate
in the action on 26 January, that was the Republic Day of India. Based on these incriminating evidences collected against Disha from her device, and in view of the fact that Nikita did not cooperate and she fled from her house, we acted against Disha because she has deleted a WhatsApp group which she created to coordinate among the various members for the toolkit, and her arrest was made in the presence of her mother and in presence of the SHO of the area concerned, and due procedure was adopted for arresting her, for conducting her medical test and producing in the court, and the Honorable Court has granted 5 days PC for Disha. The rest of the investigation is in progress. जैसा आपको विदित है, 27 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है। वह उस आंदोलन के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां हुई। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूलकिट के बारे में पता लगा जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूलकिट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 49/21 दर्ज की और साइपैड द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के IO समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक iPhone मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में ये भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है।
शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। लिखिता जैकब और संतानों के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। सर व्हाट एग्जैक्टली दोनों जानते समथिंग अबाउट हिज प्रोफाइल। सर ये आपस में कैसे एक दूसरे को जानते हैं? सर शांतनु का प्रोफाइल बता दीजिए। सर एक सवाल ये है सर कि ऐसी क्या लाइनें थी जो सेडेशन के चार्जेस लगे, मतलब क्या वर्डिंग्स थे जो कि इसमें देशद्रोह का मामला था? शांतनु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक NGO XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। XR। What is the criminality in a toolkit like this? What is the criminality? Toolkit is already studied with the document released by the Poetic Justice Foundation, and it is Khalistani NGO based. They're not inciting violence, sir. Pardon? They are not inciting any violence in the toolkit. What is the criminality? The organization which is already behind this toolkit is a banned organization. सर इस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा पार्ट कनाडा में है, विदेशों में। उसके लिए दिल्ली पुलिस अब क्या कोशिशें करेगी उससे पूछताछ के लिए, इंटेलिजेंस जारी करने के लिए, क्योंकि आप तालिबान का नाम ले रहे हैं और ठीक जो प्रोसीजर के मुताबिक हमें पावर्स अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा इनको इस केस में तफ्तीश ज्वाइन कराने के लिए। सर दिशा, ये निकिता और शांतनु ये तीनों आपस में कैसे एक दूसरे को जानते थे? ग्रेटा थनबर्ग को ही क्यों चुना था कि अचानक वो मछलियां बनती हुई ट्वीट कर देती है? इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी? थोड़ा सा मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारे एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। अभी ऐसा कोई तथ्य जानकारी में नहीं आया। Sir, a question. Sir, there is a person called Peter Frederick. His name has cropped up for his alleged links with Khalistani extremists. So, who is Peter Frederick and how is he associated with this toolkit? पीटर फेडरिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। Sir, does he have links with Khalistani outfit? Because Balwinder, who is based out of US, is someone who is in touch with Peter Frederick. इसमें मेरे साथ DCP मनीषी चंद्रा हैं, वे कुछ प्रकाश डालेंगे। एक Sir, what is Peter Frederick's role in this entire ठीक है, सेंटर पे थोड़ा इधर आ जाए। सेंटर पे पुनीत का पूरा नाम क्या है? सर मेरा एक सवाल है। पुनीत का पूरा नाम बता दीजिए। एक सवाल मेरा है, जो जूम पर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या डेटा की शामिल थी? अभी चेक करके तो बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे और साथ ही बता दें दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब उसके करीबियों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। हम बने हुए इसी खबर पर। साथ ही बता दें थोड़ी देर बाद शाम 4 बजे इसी मुद्दे पर हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।